Good morning, student. In the topic decentralization in India, in the first video lecture, we saw that what is decentralization and why we need the decentralization, and what is the procedure adopted just after the independence in the case of decentralization. We saw that after the independent, we follow the process of decentralization means we share some power from state government and central government to local government, but there was some demerit. The local government at that time was directly under the control of state government. Elections were not held regularly. Actually, there is a procedure for local government body to hold election after every 5 years, as in Vidhan Sabha and in Lok Sabha cases. Similarly, in local government bodies also there is a procedure to conduct election but at that time, because it was under the control of state government, generally state government avoid to conduct the regular election due to some circumstances or whatever is there, and generally they do not share their revenue also. It means we can say that at that time local government was subordinate to the state government. Now in this video lecture we will see that what major steps were taken to decentralize the power in 1992. Now let's start the topic here by reading the major step towards decentralization was taken in 1992. 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन के क्रम में डिसेंट्रलाइजेशन पावर के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए मेजर स्टेप लिया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेड द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेटिक मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. 1992 में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया गया. और वो सुधार क्या क्या थे, दैट्स वी हैव टू स्टडी. फर्स्ट, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी. लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के इलेक्शन कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली या मैंडेटरी हो गया, कंपल्सरी हो गया कि अब आपको प्रत्येक 5 साल में इलेक्शन कराना ही कराना है, आप कोई बहाना से बच नहीं सकते. नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी. लोकल गवर्नमेंट बॉडी का इलेक्शन कराना यह मैंडेटरी कर दिया गया, कंपल्सरी कर दिया गया. इट कैन नॉट बी अवॉइड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. सेकेंड स्टेप वॉज टेकन. सीट्स आर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड bodies and the seats are reserved in elected body and the executive head of this institution for scheduled caste, scheduled tribes and other backward caste, other backward classes. Means local government bodies में कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया, that अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट. उस स्टेट में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी का जितना परसेंटेज है, जितनी पॉपुलेशन का परसेंटेज है, उसके रेशियो में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई. सो सीट्स आर रिजर्व्ड. व्हाट इज दिस? Seats are reserved in elected body and the executive head of this institution for scheduled caste, scheduled tribes and other backward caste. scheduled caste, scheduled tribes और other backward caste के लिए
सीट्स को रिजर्व कर दिया गया उनके पॉपुलेशन के रेशियो में। थर्ड प्रोसीजर वाज अडॉप्टेड इज दैट at least 1/3 of all positions are reserved for women. 1/3 of all the positions are reserved for women. Means women's के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की गई। Now the question arises here, why it's 1/3? Why not 1/2? Because generally the population ratio is 50-50. This is the matter of discussion. Another thing I would like to ask. Now see, there is 1/3 seats are reserved for women in local government bodies. But generally we saw that suppose any seats is reserved for women, women contest the election also. But very few people know about that women and their activities. It is being directly controlled by their husband or other member of the family. Means this procedure was adopted to empower the women, but in actual sense we are not realizing that there is some need of consciousness in this respect. Okay, that is the other matter. See, at least 1/3 of all positions are reserved for women. तीसरा काम ये किया गया कि जितनी सीट्स थी लोकल गवर्नमेंट बॉडी की उसका 1/3 सीट वीमेंस के लिए रिजर्व कर दिया गया। फोर्थ इज दैट एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए प्रत्येक स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया ताकि वो रिस्पॉन्सिबल रहे इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। एंड द नेक्स्ट स्टेप फिफ्थ इज दैट द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडी। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा कि लोकल गवर्नमेंट वाज सबऑर्डिनेट टू स्टेट गवर्नमेंट, दे वेर डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट फॉर देयर रिसोर्सेज, बट नाउ इन 1992 it's made compulsory that state government have share some power and revenue to the local government body. लोकल गवर्नमेंट बॉडी को भी उसको अधिकार देना ही देना होगा। जो कर कलेक्ट कर रहा है, जो पैसा आ रहा है अलग अलग मदों से, उसका कुछ पार्ट उसको लोकल गवर्नमेंट बॉडी को देना ही देना है। कितना देना है यह प्रत्येक राज्य में अलग अलग व्यवस्था है। यह एक राज्य से दूसरे राज्य में वैरी करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1992 में जो प्रमुख कार्य किए गए पावर को डिसेंट्रलाइजेशन में, वो ये किया गया कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 ईयर कंडक्ट करना कंपलसरी कर दिया गया। सीट्स को वहाँ के पॉपुलेशन के रेशियो के आधार पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी में भी कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया गया। मीन्स एससी, एसटी एंड ओबीसी के पॉपुलेशन के रेशियो में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के सीट्स को रिजर्व कर दिया गया और 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया और इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया और यह कंपलसरी कर दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर और रेवेन्यू का कुछ पार्ट लोकल गवर्नमेंट को शेयर करेंगे ही करेंगे। So that's all in this video lecture. Now we will meet in another video after some time.